दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल ओपन सीक्रेट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का विषय है रहीम दास जी या रहीम दास या रहीम। दोस्तों दास एक उपाधि दी जाती है हमारे यहाँ संतों को, गॉड्स सर्वेंट। तो रहीम जी दास बने, राम जैसे तुलसीदास, कालीदास, कबीर दास, दैट वे। दोस्तों जब मैं छोटा सा था तो मैंने सुना, ये दोहे हम सुनते थे, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आए सुई क्या करे तरवारी। फिर रहीमन धागा प्रेम का मत तोरो चटिकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। दोस्तों एज ए चाइल्ड these couplets, dohas tickled me. Distant tickling was there, very far, and I was a child. Registration was not there, but acknowledgement was there. Something tinged, you know. Why? What would prompt a person? I'm a child. I was very young that time. My mind, it always echoed. What would prompt someone to write such couplets? Then, as I grew, I learned that Rahim ji was a Mohammedan. दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को हुए। This kind of social engineering, this I did not know that time, and even many Indians of my age did not know in those times. Means क्या होगा ये इंसान जो ये किन किन बातों के बारे में बात कर रहा है। इसमें मतलब सेंट की डेफिनेशन होती है धर्म से, रिलीजियन से, स्पिरिचुअलिटी से, अध्यात्म से। बट व्हाट इज दिस मैन? मोहम्मदन, पता नहीं क्या था। बस देन भी और बड़े हुए तो बस पढ़ लिया, बर्थ लाहौर 1556, मदर सुल्तान बेगम, फादर बैरम खान, उपाधि नवरत्न, खाने खाना, something like that, and death 1627. Rahim, true to his name, was a kind at heart. Even being a Mohammedan, he was a great devotee of Lord Krishna. दोस्तों, this is what we are taught. This is what we are knowing. But this person, he wrote such kind of couplets and in thousands. That question, it went way back in my mind, चला गया कहीं, but it always used to crop up. Either I got time and wanted to get deeper into it. So his education, naturally, Arabic, Farsi and Turkish languages he commanded. And little I learned that, to my great surprise, he had full command on
Hindi, Sanskrit, Awadhi, Braj Bhasha. And he wrote many of his, kavyas, epics, epical kind of poetry in taking words from Punjabi, Bengali, and used Sanskrit words fluently. What kind of man they should have been? In our times, we learn one foreign language, a German or Japanese, for career purposes. We know that if we learn this language, but this man at 1556, he knew so many languages. ये क्या था ये चीज? ये हम बहुत हमें जानना चाहिए. We should know. ये हिस्ट्री को जानने का एक अलग नजरिया, अलग नहीं, राइट नजरिया. If I cannot know, my friends, my brothers, my Indians have to get into that. That is the agenda. As far as agenda means purpose is concerned, theme is concerned. Then if you talk about his great works, he talked. Rahim ji wrote books or created books on very very beautiful topics. He talked about the Nayak and Naika Bhed Varnan, difference between an actress and an actor, Nayak and Naika. And he talked a lot about Shringar Ras. He talked about Krishna और गोपियों का रसिक वर्णन. He talked on logic. He talked on Raj Shastra, Niti. He talked on Shrimad Bhagavad. He talked on various castes, religions, their works, the life of ladies in various castes in India. He translated Babarnama, which was originally written in Turkish, into Farsi. No, strange. To me it was strange, I do not know for. And his way of working, way of literature was very saras and muktak. I don't know how to explain that. Means liberating, simple. That is what attracted me always. Means, friends, the more I learned about him, more I was impressed. This man, okay, let me explain you little things. It is important to go into one's family. In India, in those days, even in our little young lives, even today, family background is very important. So let me tell you in brief about his family first. What kind of family he belonged to, means what kind of childship he would have had. Those things come out of it. So, friends, his family, his father, Bairam Khan. सुन लिया. What was Bairam Khan? Bairam Khan was commander-in-chief of the Mughal army. He was associated with Babur at the age of 16. Then he accompanied Babur and played an active role in the early Mughal conquers of India. Babur, we all know, even if we do not know, let me tell you, he had an lineage of Genghis Khan and Timur. And this Babur के साथ Bairam Khan, the father of Rahim, was in his service at the age of 16, from the age of 16 in army
in his military. Then Behram Khan accompanied Humayun, the son of Babur, during his exile in Persia and helped him conquer Kandahar, which is Afghanistan. मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो इनके फादर थे बैरम खान रहीम के, वो मुगलिया सल्तनत या मुगलिया खानदान से कितने ज़्यादा और कितने डीपली एसोसिएटेड थे। उनके मिलिट्री के चीफ थे, फाउंडर मेंबर थे, मान लो आप, मिलिट्री एंगल वही कंट्रोल करते थे। जब हुमायूं इंडिया में आए तो उन्होंने एक ड्राइव चलाई। बाबर हैड अ वेरी लिटिल पीरियड रेन ऑफ अराउंड 4 years, 1526 to 1530, 1530 से हुमायूं ने टेक ओवर किया था। तो उन्होंने मतलब एक ड्राइव चलाई कि रिलेशंस बनाने चाहिए। तो उन्होंने शादियाँ की इंडिया में, तो हुमायूं ने मेवात, विच इज़ इन हरियाणा, मेवात के राजा के बड़ी लड़की से शादी की। और बैरम खान अपने आर्मी इन चीफ बोल लो, उनसे कहा कि आप इसकी छोटी लड़की से शादी कर लो। शादी की। बैरम खान was such a warrior that in those times in the cultures of Mohammedans, where everybody around in the kingly lineage had done so many marriages, he married only once, and he married on orders of his boss, King Humayun, and he married at the age of around 55, probably. Around the age of 55. And he had a son, which was Rahim, तो फादर जो है, उनकी एसोसिएशन बाबर से चली जा रही है नीचे, और बेटा जो है अभी पैदा हो गया हुमायूं के मतलब टाइम में, ये समझ लो आप। देन बैरम खान वॉज क्लोज एड ऑफ अकबर। अब हुमायूं जी चले गए, अकबर आए तो उनका भी क्लोज एड थे ये। He was commander in chief. He is the military commander in chief and chief of Mughal army in India, Bayram Khan. Okay. रहीम पैदा हो चुके हैं तो क्या उनकी लाइफ होगी, ये सोचने का विषय है। मुगल जो उनके घर में, ही सन ऑफ ओनली सन and of a family which is into deep into wars and about number 1 among उनके। अब मतलब मेरा कहने का मतलब है कि पैलेस के बाहर तो कभी ये गए ही नहीं होंगे, मैं तो ये सोचता हूँ। इनकी एजुकेशन जो भी रही होगी। नाउ गेट डीपर इनटू इट, अकबर गॉट इनटू डाउट्स अबाउट बैरम खान्स उनकी ट्रूथफुलनेस, मान लो उस पर। अब इतनी गंदी तरह से हमारे हिस्टोरियंस, हमारे बुक्स बताती हैं, मुझे जाने कितनी बुक्स मैंने देखी, मुझे समझ नहीं आता था। ये बोला कि कुछ अजीब सी लैंग्वेज में कि अकबर ने उन्हें हज के लिए भेज दिया और रास्ते में उनका मर्डर हो गया। क्या समझेगा आदमी? व्हाट विल वन फॉलो? जितना मेरे पास लिमिटेड टाइम था, आई केप्ट ऑन ट्राइंग टू नो। तो ये समझ में आया बहुत मुश्किल से एक बार कि हाँ, अकबर को डाउट हुआ था। डाउट इस पर हुआ था कि ही वाज टोल्ड कि ही वाज प्लानिंग ए कू काइंड ऑफ अ थिंग। सो अकबर, ठीक है, उसके बाद अकबर ने जीत लिया, उनको हज पे भेज दिया। आज से समझ नहीं आता क्या है। और हज पे जा रहे थे तो रास्ते में कहीं उनका मर्डर हो गया। मर्डर फिर बड़ी मुश्किल से कहीं एक जगह रेफरेंस मिला है कि तम अर्लियर कोई चक्कर था, तो किसी ने उनका दुश्मन था, उसने उनको पीठ में छुरा घोंप दिया। Now रहीम इज 5 years। मैं रहीम के ऊपर लेट अस फोकस। अकबर ने रहीम की मदर को अपने पैलेस में बुला लिया, 5 साल के रहीम को। हिस्टोरियंस अजीब है, वो कहते हैं कि कुछ दिनों में ही, पहले तो अकबर ने बोला कि रहीम को मेरे बच्चे की तरह पालो, सारी फैसिलिटीज दो, और कुछ दिनों में ही उसकी माँ से शादी कर ली। अब ये एंड दिस लेडी, शी ग्रू अप टू बी, इट इज सेड, सेकंड प्रिविलेज वाइफ, सेकंड ग्रेट वाइफ ऑफ अकबर।
कुछ तो है. बट एनी वे, फॉरगेट दैट. अकबर माइट हैव मैरिड हंड्रेड्स. ऐसे ही था उस समय का समय. बट रहीम के साइक में अगर आप झांको तो 5 साल, मुझे तो याद रहती थी अपनी बातें, याद रहती हैं. उस साइक के हिसाब से बाप का मर्डर हो रहा है, जिस राजा का उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, वहाँ कुछ हो रहा है. बाप ऑलवेज इन वार्स है. और घर में जो भी सीन है कि उस राजा ने बुला तो लिया और ठीक है भी, यू विल बी लाइक माई सन, एंड वहाँ से शादी कर ली. एंड ही वॉज द ओनली सन. फिर ये इनकी पढ़ाई वगैरह शुरू हो गई. एंड ही वॉज महलों में उनका नवरत्न बना दिया. और एक डिग्री कुछ होती थी मिर्ज़ा, दैट ही इज़ द ओनली सोर्स बिटवीन द पब्लिक एंड द किंग, वो उनको बनाया. बहुत रेयर चीज़ थी वो. उस ज़माने में बहुत कम लोग बनते थे. वेरी हाईली ट्रस्ट वर्दी पीपल यूज टू बिकम दैट. एंड देन खाना तो पहले हो गया था. ये इसका यही भी कोई उपाधि, इसका कोई मतलब है. एंड ये इसमें रही उनकी एजुकेशन रही. तो ऐसे सिनेरियो में भी उन्होंने इतनी लैंग्वेजेस पे कंट्रोल और उस पर इतना लिखा, इतना किया, जो रियली मैस्मराइजिंग है. और रहीम जो थे अकबर के तो ज़माने में उनके बेटे की तरह रहे थे. और अकबर के जो बेटे थे जहांगीर, उसको उन्होंने मतलब लाइक ए गार्जियन, लाइक ए गुरु, लाइक ए स्टूडेंट पढ़ा था. और अकबर के मरने के बाद जहांगीर वॉज नॉट हैप्पी विद बैरम खान कि भैया उसने मतलब जहांगीर का राजा बनना शायद लाइक नहीं किया था. तो अकबर उन्होंने जहांगीर ने रहीम को मतलब सॉर्ट ऑफ जेल करवा दी अकबर जी के बनने के बाद. और रहीम चित्रकूट में एक इम्प्रिजनमेंट है या नजरबंद क्या कहते हैं, जैसे वो करवा दिया उनको. और उनके 2 बेटे मार दिए, मर्डर्ड 1605 में जब अकबर मरे. तो ये हुआ रहीम के साथ. इन द प्रोसेस ही हैज मैरिड थ्राइस. 3 बीवियां थी रहीम जी की. पहली बीवी से 2 लड़कियां 3 लड़के, दूसरी बीवी से शायद 2 लड़के, तीसरी बीवी से 1 लड़का. और इन सब में से 2 बेटे, और उनको मरवा दिया जहांगीर ने. और इनको रहीम को जेल में या नजरबंद करके चित्रकूट में डाल दिया. इतनी इनकी फिर भी हिंदू धर्म या हिंदू, पॉइंट इज दैट हाउ मच गुड आवर सिस्टम्स हैड मस्ट हैव बीन कि इवन अ पर्सन ऑफ दिस काइंड ऑफ लाइफ ही बिकेम सो मच डिवोटेड टू इंडियनिज्म एंड इंडियन थॉट्स. एंड उस पर उनका इतना ज़्यादा बड़ा अपना कंट्रोल रहा, या उन्होंने इतना उसमें काम किया कि वो उस समय के तुलसीदास से दोस्ती हुई उनकी. हाँ. और ऐसे जो उस समय के सेंट्स थे उनसे उनकी फ्रेंडशिप हो गई थी. बहुत फ्रेंडशिप उनसे रही थी. अब ये हो गया कि इतनी टफ लाइफ के बाद भी तो एक उनमें इन सब के बावजूद एक ज्ञान और था, दान देने वाला, जो आपने सुना ही होगा. बहुत दान करते थे ये. दैट इज द इंडियन सेंटिमेंट एज आई थिंक, इंडियन वे ऑफ लिविंग कल्चर. एक बच्चा, एक सोल, टर्किश और क्या बोलते हैं वो, चंगेज़ खान, और वहाँ से निकल करके और इतना लाइफ में टर्मोइल के बावजूद इंडियन जब सॉइल पे इंडियन पैलेस में रहा, तो उसे ज़रूरत नहीं है जाके गाँव में रहने की. तब भी उसकी जो माइंड है, साइक है, ऐसी बनेगी. एंड दिस कंट्री वी पीपल एब्जॉर्ब्ड हिम एंड उनको उपाधि दी दास की. ये समझने वाली बात है. एक ऐसे मतलब अपने ही हैं वो, जब यहाँ रह रहे हैं तो ऐसा है हमारा इंडिया. नहीं ऐसा था हमारा इंडिया, ऐसा है हमारा इंडिया, ऐसे हैं हम लोग. ओके. उनके दान देने की, अब ऐसे सिनेरियो में आपको उनके दोनों का मतलब समझ में आता होगा क्यों उन्होंने ये सब लिखा कि रहीमन देख बड़े इनको लो न दीजिए डारी. और समझ में आता है एक बारी में, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटे, एकदम समझ में आती है मतलब क्या है इसका.
नो, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, सब एक मुझे समझ में आता है, कोई डाउट नहीं आता इसमें। अब वो मेरे बचपन की जो चीज़ें थी वो निकल निकल के आती हैं। केशवदास थे हमारे यहाँ के संत, उनसे भी इनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब महल में पड़ा हुआ है और इतना टर्मोइल है और इतना गंद मचा रहा है इंडिया के अंदर, और तब भी हमारे जो भक्ति मूवमेंट उस समय, जो कहते हैं भक्ति मूवमेंट आया ही इसलिए था कि फॉरेन इन्वेजन्स बहुत सारे हो गए थे। उस भक्ति मूवमेंट के जो हमारे सेंट्स को दास की डिग्री मिल रही है, उसमें रहीम जी ने कमाई। तो क्या सोल रही होगी ये हमें समझना है, ऐसी सोल कैसे बनती है ये समझना है हमको। अपने देश के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है, हमें अपनी परंपरा, अपनी, कहते हैं ना कि जय जय भारत की यह धरा, जय जय यहाँ की परंपरा, इस चीज़ को समझना है, इसका एंजॉय करना है, इसमें इसको समझना है, इसमें इसमें इवॉल्व होना है। रहीम के दान देने की प्रवृत्ति ऐसी थी कि जब दान देते थे उनकी आंखें झुक जाती थी। अब ये समझ में साफ साफ आता है। तुलसीदास ने उनसे पूछा कि ऐसी देनी देन जू कित सीखे हो सैन, ज्यो ज्यो कर ऊंचो करो त्यों त्यों नीचे नैन। तो रहीम जी ने उत्तर दिया था, देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पे करें तासो नीचे नैन। We have to appreciate, we have to enjoy, we have to feel great about, I feel, I don't know if you people can, आप लोग भी तो सब साथ ही जुड़े हो, समझोगे ही। ऐसी थी रहीम की पर्सोना, पर्सनैलिटी। इंडिया बहुत बढ़िया कंट्री रही होगी, थी, है। हमें इसमें से जो करप्शन है कोई निकालनी है। रहीम जैसे पर्सन्स उस कल्चर में जीने वाले, पैदा तो हुए थे, जिए पूरा उसके अंदर। मैं तो ये कहूँगा कहीं वर्णन नहीं है कि कब ये गाँव में रहे या कुछ हुआ, कुछ नहीं। मेरे ख्याल में तो महलों में रहे होंगे और हमेशा वार देखे होंगे, और क्या लाइफ रही होगी अंदर की महल की, अनबिलीवेबल। और बंदा लिखता है, मन मोती और दूध रस इनकी सहज सुभाए, फट जाए तो न मिले कठिन करो उपाय। रेमन चुप ही बैठिए, देखी दिनन का फेर, जब अनेक दिन आइए बनत न लागी देर। Who can write such couplets? बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रेमन हीरा कब कहे लाख टका मुरमोल। Thank you, friends. Thank you very much. Friends, if you like this short video, please like it, subscribe us, हमारे ग्रोथ में हेल्प कीजिए। These videos are ticklings, my tickling, which I am passing on to you only for the purpose that please enjoy them, and this enjoyment will surely bring about some change in you, and you will be more helpful for the society, Indian society, than me. I am 100% sure of that. Thank you so much.